Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good Okay. afternoon, sir. Uh, Good afternoon. मुझे जहाँ तक उम्मीद है, as I think you may not be having any doubt with the derivation that we did yesterday, right? Yes, Okay. So we derived three equations of motions yesterday, and those equations of motion that we derived was v is equal to u plus at. Another one was x is equal to ut plus of half at square. I hope सबको मेरी आवाज जा रही है. Yes, And the sir. last one was v square is equal to u square plus of 2x. These were the three equations that we derived yesterday, right? Now my point is that we are now supposed to solve or supposed to apply these equation of motions in different numerical problems. ठीक है, ताकि हमें इसका यूज समझ में आए, है ना? We need to understand the use of these equations of motion and how these equations of motion will be applied. भाई इसका अप्लाई एप्लीकेशन कैसे होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे. That means we are going to solve few numerical problems based on this. We will be solving few numerical problems based on this. Clear? तो कुछ क्वेश्चंस हैं, अब उस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं. तो देखो वन बाय वन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले तो बिल्कुल एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ. आई विल बी टेकिंग वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन. ठीक है? That these type of question you must have already done in class 9th. So I'm taking a very simple question for the first question will be very simple one. See, मान लो let's say a particle started its motion from rest. मान लो और नहीं, रेस्ट से क्यों स्टार्ट करें, चलो ऐसे एक क्वेश्चन बनाते हैं मिलके. a party The velocity of particle, the velocity of particle is 10 meter per second. After 2 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. है ना? A particle is moving with a velocity of 10 meter per second. After 2 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. You have to calculate distance covered by particle in 2 seconds. Everyone has understand the question. I am saying a particle is moving with velocity of 10 meter per second, and after 2 seconds its velocity becomes 20 meter per second. So the question is, okay, how much is the distance covered by the particle in 2 seconds? Did you understand question? Please tell me yes or no. Yes, sir. yes, sir. ठीक है, सबको अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो पहले आप ट्राई करो. फर्स्ट Okay, यू sir. अटेम्प्ट. अच्छा, एक बात तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल, सबको एक बात समझ में आ रही होगी, बिकॉज वेलोसिटी चेंज इज चेंजिंग. वेलोसिटी चेंज हुआ है, एंड बिकॉज वेलोसिटी चेंज हुआ है तो मतलब मोशन इज एक्सेलरेटेड. मींस एक्सेलरेशन, मोशन विल बी एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब इस मोशन में एक्सेलरेशन है. एंड व्हेनेवर यू हैव एक्सेलरेटेड मोशन, तो यू विल हैव टू अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट? अब देखो, आपके किसी भी क्वेश्चन में you can solve the question by just applying one equation of motion, or you need to apply more than one equation of motion to solve the same problem also. मतलब किसी भी प्रॉब्लम में एक इक्वेशन भी लगा के सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, या एक से ज्यादा इक्वेशन भी लग सकता है. यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय जस्ट अप्लाइंग वन इक्वेशन और मोर देन वन इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आप देखो whether you are able to solve or not. Just first you try, उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ. क्वेश्चन इज वेरी इजी, आप कोशिश करो फिर मैं बताऊंगा.
Sir, done. Okay, good. Mauna, solve हुआ? Sir, doing. क्या? What are you saying, Mauna? I didn't get you. Sir, I'm doing it. Okay, you are doing. Janvi, क्या हुआ? Solve हुआ? Janvi, तारिक, चलिए मैं आपको समझाता हूँ बेटा. ये मोशन में एक्सेलरेशन है सर, ये कैसे पता? Because velocity is changing. It was 10 meter per second initially, and after 2 seconds it becomes 20 meter per second. Means velocity is changing. And whenever velocity changes, the motion of the body becomes accelerated. Means there will be acceleration. Now my point is, what will be this acceleration? Acceleration is not given to you. So first of all, we will find the acceleration. And how we will calculate the acceleration? So to find the acceleration, we will use first equation of motion, which is v is equal to u plus at. Did you understand? Yes, sir. Why will you use this equation? Because I know the final velocity is 20. I know the initial velocity is 10 plus of acceleration, which I am supposed to calculate. And in how many seconds? So in 2 seconds, you are supposed to calculate the acceleration. Yeah, in after 2 seconds. So what will be this acceleration? So 2a will be equal to 20 minus 10. So a will be equal to 20 minus 10 will be 10. 10 divided by 2 is equal to 5 meter per second square is my acceleration. Is it clear to all? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Once I have got the acceleration, now what I was supposed to find is the distance, right? So for distance, we will be using this equation x is equal to ut plus half at square. Why we would use this equation? Because I know the value of time, I know the initial value of velocity, and I know the acceleration. So I can calculate distance, right? I can calculate distance by using this in 2 seconds. So let us apply this. X is equal to u. The value of initial velocity is 10 multiplied by time is 2 plus of half into 5 multiplied by 2 squared. 1, 2 will cancel out. Right? So this will become 20 plus of 10 is equal to 30 meter. Is it understood or not? Yes, sir. सबको तारिक, ताहिरा, Yes, sir. इशिका, विभूति, जानवी, इब्राहिम. Yes, sir. ठीक है. तो ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैव टेकन. अब थोड़ा थोड़ा हम लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हैं इस क्वेश्चन को. तो आई एम इरेजिंग दिस नाउ. आई विल बी गिविंग यू द अनदर क्वेश्चन. तो आई विल इरेज दिस, राइट? तो आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन नाउ. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ध्यान से सुनो, पहले सुन लो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ पार्टिकल और अ मैन starts running from rest. Listen to me clearly first. A man starts from rest. That is, initial velocity of the man is 0. अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में मेंशन हो a body starts from rest, या body is released or body is dropped, so initial velocity undoubtedly will be 0. And if the body finally comes to rest, then the final velocity will be 0. Okay, you have to remember this. If a body starts from rest, initial velocity will be 0. If the body comes to rest, its final velocity will be 0. Okay, the point is that a man started from rest, continues to accelerate at a rate of 2 meter per second square. I will dictate the whole question, don't worry, but first try to listen to the question first. Particle or body, a man started from rest, accelerated at a rate of 2 meter per second square for t is equal to, let's say, 4 seconds. Clear? Then he continued moving with the constant velocity. He continued moving with the constant velocity for, let's say, t is equal to 8 seconds. Okay? And then he starts retarding at a rate of 1 meter per second square. He starts retarding at a rate of 1 meter square per second square till he finally comes to rest. Did you understand? I am repeating Yes, this sir. again.
देन ही स्टार्ट रिटार्डिंग, मतलब यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से पहुंचा, फिर उसके बाद ही स्टार्ट डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी till its final velocity becomes equal to 0, right? The simple question is calculate the total distance covered by this man. Calculate total distance covered by the man. Now I am dictating it again. Please write the question, write it for you, write the statement of the question and then try to solve. तो लिखो, क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखो. अ मैन starting from rest accelerates at a rate of 2 meter per second square for 4 seconds, then moves with constant velocity for 8 seconds and then retards at a rate of 1 meter per second square till his final velocity becomes 0. Calculate total distance covered by man. Please note down the question, then we'll solve. Please hurry up, note down the question. Hurry up, note down the question. क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा तो मुझे बता दीजिएगा. तारिक तुम क्वेश्चन समझ गए हो, पहले ये बताओ. फिर से मैं समझा रहा हूं तो पूछ लिया करना बेटा, नहीं समझ में आए तो पूछा कर, शर्मा क्यों रहा है. आपसे कहता है क्वेश्चन में कि अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब एक आदमी है जो रेस्ट में था और उसके बाद चलना शुरू कर देता है, ये स्टार्ट्स मूविंग, राइट. तो मैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो इसका मतलब मैन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, 0, क्योंकि बैठा हुआ था ना, उसके बाद चलने लगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0. ठीक है, और जब चला तो उसका एक्सेलरेशन कितना है तारिक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन. ठीक है, और इस एक्सेलरेशन के साथ वो 4 सेकेंड्स तक चला. मान लो यहां से वो स्टार्ट हुआ, यहां तक पहुंचा, जब बी पे पहुंचा तो बी से सी तक मतलब 8 सेकेंड्स तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है. तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी सर कितनी होगी, देखो यहां पर वेलोसिटी 0 थी, यहां तक आते आते कुछ वेलोसिटी गेन करेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहां तक जो वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी से वो बी से सी तक जाएगा. अब जब सी पे पहुंचा वो, तो इसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसमें कहा है आपसे रिटार्डेशन हो रहा है. रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज होना. तो यहां से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और कब तक होगी, जब तक फाइनली वो 0 नहीं हो जाती. अब समझ आया? ठीक है, ओके. अब मुझे बताओ, कैन आई इरेज दिस स्टेटमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम? आपने नोट कर लिया तो कैन आई इरेज दिस स्टेटमेंट दैट, ओके. Mauna, what you say? Can I erase? Yes. Janvi, I'm not getting any response from your side. Janvi. Yes, sir. Actually, the chat is disabled and my mic is not working sometimes. Okay, okay. Let me enable the chat option. Let me enable that. Wait a moment. Chat option. Everyone. Okay, I've already enabled the chat option, so you can now message me. Okay, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला I will be talking about from A to B, first part of the motion A to B. I'll be talking about this first, right? उसके बाद I'll be talking about B to C and then I'll be talking about C to, let me call this point as D. तो A to B में देखो, A to B में इनिशियल वेलोसिटी बेटे 0 है, एक्सेलरेशन मेरा बेटा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना, तो टाइम इज 4 सेकेंड्स. ठीक है, ए से बी में. तो एक बात बताओ, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी, कैन आई यूज दिस इक्वेशन v is equal to u plus at? तो v will be equal to what, that will be equal to u is 0 plus of a is 2,
multiplied by t is 4, that is 8 meter per second. Means at B the velocity will become 8 meter per second. Is it clear? Yes. Yes. Now second point, इस 4 second में, in 4 seconds how much is the distance covered by this man? इस 4 second में वो कितना distance cover किया है? AB की वैल्यू कितनी है? तो distance of AB, can I write it as ut plus of half at square बेटा? ठीक है, ये वाला इक्वेशन लगा दो. तो ut plus half at square करोगे तो u तो 0 है बच्चे. तो u अगर 0 है तो I will be simply writing it as 1 by 2 into t square. और टाइम कितना है 4, तो 4 squared, 2 and 2 will cancel out, तो xab, that is the distance from A to B, will be 16 meter. ठीक है. From the first part of the motion we have got two information. We have got the value of final velocity first, and then we have got the distance traveled. Is it clear to all? Yes. भाई Sir. यहाँ पर velocity कितनी Yes, हो sir. जाएगी ये सबको पता चल गया, और distance भी कितना ये पता चल गया. अब जो velocity यहाँ पर है B पर, with the same velocity the particle goes from B to C. जितनी velocity उसकी B पर है ना, उसी velocity से वो कहां से कहां तक जाता है? B से C तक. तो अब मैं सॉल्व करूंगा बेटा B to C वाला पार्ट. अब देखो B to C में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड है. एक्सेलरेशन कितना है? 0. सर एक्सेलरेशन 0 क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है. और टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चे? 8 सेकंड्स. इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो इस केस में B से C का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है ना, तो सीधा सीधा हम डिस्टेंस क्या लिखेंगे? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, that is 64 मीटर. आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो. यहां तक Yes, नोट sir. करो. Everyone, if anyone is having any sort of doubt, please ask me. Otherwise, please note it down so that we go to the third part of the motion now. Done, sir. Okay, good. Now we move to the third part. Okay, okay. ठीक है, नोट करो, नोट करो. सर एक बार फिर से रिपीट कर दो B2C वाला. B2C वाले में देखो, B2C वाले में बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है ना मेरे बच्चे. हमसे बोला ही है क्वेश्चन में कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. तो वो वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और वो वेलोसिटी कितनी हो गई? 8 मीटर पर सेकंड. अब इस कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कहां से कहां तक गया बेटा? B2C तक. तो याद रखो, व्हेनेवर वेलोसिटी इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0 होगा. और अगर एक्सेलरेशन 0 है, फिर से सुनो, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 है तो सिंपली डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो? डिस्टेंस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम. समझ में आई बात? यस सर. ठीक है. अब देखो, नाउ वी मूव टू C to D. अब देखो B पे जितनी वेलोसिटी थी उतना ही वेलोसिटी C पे भी है ना, तो C पे जो वेलोसिटी होगी वो 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगी. अब देखना C to D वाला पोर्शन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू विल हैव टू आस्क, राइट? आप खुद से मुझसे पूछ लिया करें. आप मेरा वेट ना करें कि मैं आपसे पूछूंगा तब आप मुझे बताएंगे. आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क इट, राइट? तो देखो, फ्रॉम C to D, अगर मैं C to D पे जा रहा हूँ, C to D, बेटा मुझे एक बात बताओ, C से D में व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? इन गोइंग फ्रॉम C to D, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन C to D. 8 मीटर बहुत पर. बढ़िया, बहुत बढ़िया. भाई तारिक, समझ में आई बात? इनिशियल वेलोसिटी विल बी ऑब्वियसली 8 मीटर पर सेकंड. Yes, sir. यस सर. Yes, C sir. पे जो वेलोसिटी है वही इनिशियल है. फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? 0, क्योंकि Zero. हमसे कहता है फाइनली इट हैज टू बिकम 0. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज आपको नहीं पता है. यू डोंट नो द टू क्वांटिटीज. एक तो टाइम नहीं पता है आपको, यहाँ से यहाँ तक का टाइम नहीं पता है, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब x निकालने के लिए आप ut प्लस हाफ at स्क्वायर तो यूज नहीं कर सकते. अगर ये यूज करना चाहते हो तो पहले आपको टाइम निकालना पड़ेगा. तो सर अगर ये यूज नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? एक दूसरी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं क्या? सोचो तो. क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ 2x. Yes, sir. हमें फाइनल वेलोसिटी पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 8 है, तो 8 स्क्वायर
प्लस ऑफ 2, एक्सेलरेशन कितना है -1, तो -1 लिख दो, इनटू x c2d। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 64 माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा -2x c2d। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बिकम 32। इज इट करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तो ये तीसरा डिस्टेंस आ गया। अब तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा या नहीं, ये बताइए। Yes, sir. एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है सर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके जानवी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ऐसे कर देना है, और ऐसे करेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी। नोट कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ और भी कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन से यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि फॉर द सेम क्वेश्चन वी हैव डिवाइडेड द होल पाथ इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। एक ही क्वेश्चन में हमने पूरे पाथ को, पूरे रास्ते को 3 पार्ट में डिवाइड करा है, फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to C एंड फ्रॉम C to D। इसका मतलब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको ये भी पॉसिबल है कि आपको एक ही जो पूरा मोशन है उसको आपको एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड करना पड़ सके और उसके बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़े। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, if you get a question of based on equations of motion, then you may get to divide the total path in more than one part। ठीक है, जैसे मैं एक बार और क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, बोलूं? Yes. Sir. या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बता देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is u, its final velocity becomes v after it covers some distance. If body accelerates with constant acceleration, then find its velocity at mid of the path. Listen to the question first. मेरी बात सुनो, everyone please pay attention here. A particle starts with a velocity u, ठीक है, उसकी velocity कितनी है बेटा, initial velocity? So the initial velocity of the particle is u. Its final velocity becomes v after it has covered some distance, मतलब कुछ distance cover करने के बाद, और वो distance की value given नहीं है। Listen to me clearly, the value of that distance is not given. आपसे simply ये बोला गया कि velocity becomes v after it covers some distance, but the value of distance is not given, right? आपसे कहता है कि it accelerate with a constant acceleration. Acceleration भी आपको पता है कि वो कांस्टेंट है, बट उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। आपसे बोला अगर मान लो कि मैं ये टोटल डिस्टेंस d मान लूं, लेट अस अस्यूम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल टू बी d, तो आपसे कहता है कि एट द मिड ऑफ द पाथ, मिड ऑफ द पाथ मींस एट अ डिस्टेंस ऑफ d by 2, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. भाई आपसे ये कहता है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u है, पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v, तो आपसे कहता है कि वो जो मिड पॉइंट पे ना इसकी वेलोसिटी जो होगी मिड पॉइंट पे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी? मतलब अगर आप ये डिस्टेंस 10 मीटर मानते हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि 5 मीटर पे ये वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, मिड पॉइंट पे कितनी होगी। दैट व्हाट यू आर सपोज टू सॉल्व फॉर। तो पहले इस क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्व करते हैं मिलके। Done. ओके, तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपने Okay, नोट कर sir. लिया तो कैन आई इरेज दिस क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, No, sir.
No, sir. अच्छा नोट कर लो. अच्छा उसके बाद after dealing with all these questions that I am giving you from my side, we'll be discussing the question from your assignment, not NCERT. अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करता हूँ. नोट कर लिया? कैन आई erase this? Okay तायरा. Mauna? So last line. Okay. Write the last line. अच्छा मेरी बात सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुने. मेरी बात आज सारे बच्चे पहले ध्यान से सुने. Listen to me now. देखो, the assignments that you are getting, you have to solve those assignment. It is for very sure that you have to solve your assignment. ठीक है, and you have to discuss your doubt. वो तो है ही है. But along with that, in addition to that, you have to solve question from your NCERT textbooks. You have to solve you have to solve questions from NCERT textbooks also, right? That NCERT book is also a sort of assignment for you. So you have to solve question from NCERT, and I'll give you the number of questions when it will be required. Okay? Whenever it will be required, I'll tell you which problems you are supposed to do. Okay? But for Okay, now, sir. as we haven't completed the chapter, so I'm just giving you the assignment from our side. Once the chapter will be over, you will have to solve all the questions from your NCERT books, and we will discuss doubts from that also, right? So keep doing problems from wherever you are getting the questions you have to solve. But your main assignment from our side is the assignment that we are providing to you is your assignment that you have to solve for. And the second is the NCERT questions that you have to solve, right? And in addition to that, if you are solving questions from some other books also, then it is most welcome. You can ask your other doubts also, other than this assignment and NCERT. If you are having a doubt from some other books also, you can ask, right? Okay, so moving on to this question, how to solve this question. अब ये question कैसे solve करेंगे ध्यान से सुनो. हमें given क्या है? तो we only know the initial and final velocity. Yes. Neither we know the distance nor we know the value of acceleration. तो एक बात क्लियर है कि सर हमें डिस्टेंस या एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो आई विल बी अज्यूमिंग दिस एज d and a. But remember, the final answer cannot be in terms of d or a, because only the quantity which is mentioned in the question is final velocity and initial velocity. तो आपका आंसर भी किसके टर्म्स में होना चाहिए? इसी v और u के टर्म्स में. इशिका और विभूति बहुत साइलेंट जोन में चली गई हैं. विभूति, भान एंड इशिका. अभी किसने बोला? इशिका ने बोला या विभूति ने बोला? Sir, Ishika Vibhuti, won't sir. come today. What happened, Mona? Sir, Ishika had to go to the dentist. Okay, she is not present today. Okay, sorry. I thought she is here and not responding. Anyways, okay. So what I told you is, in question, the quantities that is given is initial velocity and final velocity. So answer can be only in terms of u and v. But to solve the problem, I assuming the total distance to be d and acceleration to be a. Solve करने के लिए, but I'll have to eliminate these values. तो मान लो ये distance कितना होगा? This distance would be d by 2. And this another distance will also be d by 2, right? Both the distances will be d by 2, है ना? Yes, अगर sir. दोनों distances d by 2 हैं सर, अगर ये दोनों distance d by 2 हैं, again I will solve the problem in two parts. Try to understand. Let me call this point as p, let me call this as q, let me call this as r, and this is the velocity that I am supposed to calculate. I am calling this velocity as v mid. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. If I am solving from P to Q, अगर मैं P से Q solve कर रहा हूं, तो tell me what is initial velocity at P बेटा? It is u. नहीं आया भाई. initial velocity की वैल्यू कितनी है बेटा? P to Q को ये. सिर्फ ऑब्जर्व करो. Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितना है? व्हाट इज द V. वैल्यू ऑफ फाइनल v? इसको मैंने एक नाम दे दिया v मिड मान लो. V mid. ठीक है. अच्छा एक्सेलरेशन आपको पता है कि कितना है? एक्सेलरेशन तो a है. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a. और डिस्टेंस कितना है? D by 2. डिस्टेंस ऑफ यस d by 2. Which equation is most appropriate for this?
where you know initial velocity, final velocity, distance और acceleration. अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन ये पता हो तो कौन सा इक्वेशन मुझे लगाना चाहिए? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax वाला. Yes, sir. ठीक है. अगर आप ये इक्वेशन लगाएंगे तो आप ऐसे लिखेंगे क्या, v मिड का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2 into a into d by 2. टेल मी, 2 Yes, and sir. 2 cancels out. If cancels out, what will you write? You will write this as v mid ka square minus of u square is equal to ad. Is it understood or not? Please respond. Sir. Yes, sir. पहला इक्वेशन सबको समझ में आ गया होगा. Yes, sir. Okay, moving on बेटे. बच्चे मेरे, if I have to go from now from q to r, if I'm going from q to r, who will tell me what is initial velocity? q से r को देखो, q से r जाने में इनिशियल कौन सा होगा? Sir, V mid. वेरी गुड बेटा, v mid. एक्सेलरेशन तो विल रिमेन द सेम, दैट इज a. यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे तो डिस्टेंस इज स्टिल d by 2. ठीक है. एंड फाइनल वेलोसिटी अगर यहाँ पर हम देखें तो दैट इज v, है ना, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. अगेन अप्लाई द इक्वेशन. अब यहाँ पर इक्वेशन लगाओगे तो आप लिखोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू v मिड स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई d by 2. यही तो आएगा सर. v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर्ड plus of twice of acceleration multiplied by the distance. This 2 and this 2 again cancels out. What is left is v square minus of v mid squared is equal to ad. Is it clear to all or not? Yes, sir. Yes, sir. So I have got the two Yes, sir. equations, right? है ना? I have got two equations. One is this, another one is this. दो equation आ गया सर. अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं you can equate the two equations. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट करो, इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ इक्वेटिंग 1 and 2. Please wait. Please go to the previous slide. ओके ओके ओके, यू नोट इट डाउन फर्स्ट. अब इसके बाद आपको पता है व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. यू जस्ट हैव टू इक्वेट द टू इक्वेशंस बिकॉज राइट साइड ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम, है ना. तो राइट साइड अगर सेम है तो इक्वेट कर लो, v मिड निकल आएगा. देखो v मिड निकल आ रहा है या नहीं. आर यू गेटिंग द वैल्यू ऑफ v मिड और नॉट? Done, sir. ओके 10 seconds. ना, ओके आई एम वेटिंग. नोट करके बताओ. हो गया बेटा? 1 second. ओके. Done, sir. Sir, done. ठीक है. तो आई एम गेटिंग सम आंसर फॉर इट. समवन हैज ऑलरेडी इक्वेटेड. हाँ, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज लेट आंसर. लेट आंसर मतलब तायरा टाइपिंग एरर हो गया क्या? खैर चलो, लास्ट. हाँ नहीं, सिर्फ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर नहीं आएगा. आप इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करते हो तो देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से इक्वेट होगा. देखो तो आप क्या लिखोगे, v मिड स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर. और सेकंड वाला केस क्या है, तो यहाँ पर है v स्क्वायर माइनस ऑफ v मिड स्क्वायर. ये है v स्क्वायर माइनस ऑफ v मिड स्क्वायर. ठीक है. तो अब इसको v मिड एक तरफ ले आओ, ब्रिंग दिस v मिड टुगेदर. तो v मिड स्क्वायर प्लस ऑफ v मिड स्क्वायर, यस, this will become twice of v mid square is equal to v square plus of u square.
एंड यू नो हाउ टू चेंज द साइन, राइट? कि अगर इक्वेशन में इधर उधर करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है ना? ओके, तो v mid की वैल्यू क्या होगी? तो v mid स्क्वायर्ड विल बी इक्वल टू v स्क्वायर प्लस ऑफ u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो v mid will be equal to under root of v square plus of u square divided by 2. Is it correct? Yes, sir. Yes, Tyra. Yes, Tyra. This is the correct answer for this. अब क्लियर हो गया सबको? Yes, नोट कर sir. लो जल्दी से so that we can move to one more question. We'll discuss one or two more questions. ठीक है? But for that, please note it down. हो गया? आगे चले? Yes, sir. ठीक है सर. Okay, moving on. Let us take one or two more questions further. See, the next question of mine is, अब फिर से मैं क्वेश्चन तुम्हारे साथ बना रहा हूं, मतलब दिस इज नॉट द क्वेश्चन दैट आई एम डिक्टेटिंग फ्रॉम एनी ऑफ द बुक, राइट? प्लीज बिलीव मी. ये क्वेश्चन मैं इंस्टेंटेनियसली बना रहा हूं, इंस्टेंटली, या जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको दे रहा हूं. तो आई एम जस्ट मेकिंग अ क्वेश्चन जस्ट फॉर यू. ठीक है? तो जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद मैं उसका स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, देन विल सॉल्व. क्वेश्चन का सिचुएशन समझो. ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. Assume that this is a car, and believe me, this is the best car that I can draw. मेरी ड्राइंग खराब है तो मैं यही कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा. I can draw this kind of car only, and you will have to assume this as a car. Let us say this is a car. Obviously, some driver would be driving this car, and this car is moving with a velocity of 20 meter per second. Okay, this car is already moving with a constant velocity of 20 meter per second. The driver observes a man is standing at a distance of 60 meter from the car. Did you understand till here? कि भाई एक कार है, this car is moving with velocity of 20 meter per second. जब कार और मैन के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर है, तो ड्राइवर ऑब्जर्व्स दिस मैन. तो ड्राइवर को ये मैन दिखाई देता है. ठीक है? ड्राइवर को ये मैन दिखाई देता है ना? तो ड्राइवर को ये मैन दिखाई देता है. अब ड्राइवर क्या कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए. ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया. ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, ठीक है, टू स्टॉप द कार. आपको मालूम होगा कि कार ब्रेक अप्लाई करते ही के साथ पहली बात तो कार स्टॉप नहीं हो जाएगी, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ड्राइवर ने इस मैन को देखा, मतलब ड्राइवर ऑब्जर्व्स द मैन, सीज द मैन. ठीक है? Driver sees a man standing at a distance of 60 meter and then he applies brake. So there would be a time difference in seeing and applying the brakes, and that is called as reaction time. मेरी बात समझ में आ रही है? This time is known as reaction time. मतलब आपने किसी चीज को देखा और उस पर आपने रिएक्ट किया. So the time difference in between seeing and reacting to something is called as reaction time. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ. Yes, sir. Yes. आप लोग जब क्रिकेट भी खेलते हो ना, क्रिकेट या आप कोई भी गेम खेलते हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गेम का मतलब जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह के गेम्स, या बास्केटबॉल, तो उस केस में अगर आप किसी भी चीज बॉल को हिट करते हो ना, हिट, तो आपके पास अगर बॉल आया, देन यू विल हिट. पहले बॉल को देखा और फिर हिट किया, तो आप देखने और हिट करने के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आ गया, रिएक्ट करने में जो टाइम लगा आपको, that is basically called as reaction time. और मान लो इस ड्राइवर का रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, मैं लिख देता हूं यहां पर, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर इज 1 सेकेंड. मतलब ड्राइवर ने देखा और ब्रेक लगाया, तो देखा और ब्रेक लगाने के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना आ गया? 1 सेकेंड. इसका मतलब है कि देखने के 1 सेकेंड के बाद तक ब्रेक नहीं लगाए, देखने के 1 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाए. नहीं आई बात समझ में? देखते ही ब्रेक नहीं लग गया, 1 सेकंड के बाद ब्रेक लगा, तो मतलब देखने के 1 सेकंड बाद तक तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी ही से चला होगा. Sir. ठीक है? नाउ आफ्टर दिस 1 सेकंड ब्रेक्स आर अप्लाइड,
तो अगर आप ब्रेक लगाओगे गाड़ी में तो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी या रिटार्ड करेगी? व्हाट विल हैपन टू द कार? रिटार्ड। रिटार्ड करेगी, उसकी वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड फाइनली इट विल बिकम जीरो। तो आपको कह रहा है कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ड्राइवर आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, जो कार में रिटार्डेशन हो रहा है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको सिंपली ये बताना है, यू जस्ट हैव टू चेक वेदर कार विल हिट द मैन और नॉट। डिड यू अंडरस्टैंड? कि भाई गाड़ी या कार जब तक रेस्ट में आएगा तब तक ये कार इसको हिट कर देगा या इससे पहले ही रेस्ट में आ जाएगा? 60 मीटर के बाद रेस्ट में आएगा या 60 मीटर से पहले रेस्ट में आएगा? मेरी बात समझो, अगर 60 मीटर से पहले रेस्ट में आ गया तो कार विल नॉट बी एबल टू हिट द मैन। बट अगर कार को रेस्ट में आने में 60 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है तो वो कार मैन को हिट करता हुआ चला जाएगा, नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और नॉट? फर्स्ट Yes, टेल मी sir. यस और नो। एवरीबॉडी Yes, प्लीज sir. रिस्पॉन्ड। मैं इसको लिखवा दूंगा, बट द क्वेश्चन इज कि अ कार ड्राइवर sees a man standing at a distance of 60 meter. His reaction time is 1 second. He applies brake and car starts decelerating at a rate of 2 meter per second square. You have to find whether the car hits the man or not. तो अब मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। Driver of a car moving with 20 meter per second sees a man standing at 60 meter. His reaction time is 1 second after the driver applies brakes. Driver applies brake. Car decelerates या retards at a rate of 2 meter per second square. ठीक है? Find out whether car hits the man or not. क्वेश्चन सबको क्लियर है? एक बार बताइए Yes, sir. प्लीज, नोट करिए और मुझे Yes, sir. मैं सॉल्व करूंगा। ओके, सबको क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है? विभूति? Yes, sir. Yes, sir. ओके, मोहना, डिड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन बेटा? मोहना? Yes, sir. जानवी, डिड यू गेट द क्वेश्चन? Okay, now I'll be solving. First note it down and inform me so that I can solve this question. Sir, done. Okay, moving on. चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन के द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 1 सेकेंड। तो देखो, हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि बिफोर कार स्टॉप्स व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। हमें ये चेक करना है कि जब तक कार रुकेगा व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस दैट हैज बीन ट्रैवल्ड बाय द कार। ये हमें चेक करना है। If car travels a distance less than 60 meter, तो car will not hit the man. If car travels more than 60 meters before coming to rest, तो obviously car will hit the man. तो question is simple कि we have to first find out how much is the distance covered by the car before it stops. So ठीक है? please तो do the question.
What? Should I show you the question again? Yes, sir. Okay. Hurry up, beta. Note it quickly. Done, sir. Okay. Okay, moving on. See what we are supposed to do. How we will solve, or how we will check whether the car hits the man or not. So I just told you, okay, check how much is the distance covered by the car before it comes to rest. If the distance traveled by the car before coming to rest is less than 60 meter, then obviously car will not hit the driver. Car will not hit the man. If car travels a distance more than 60 meter before coming to rest, then of course car will hit the man, right? So we have to check that. So how much is the distance traveled by the car? Just we have to check. See, for the first 1 second, मतलब पहले 1 second में जो reaction time है, during that time कार में कोई ब्रेक तो नहीं लगा. मुझे एक बात बताओ, इसने देखा और ब्रेक लगाने की कोशिश किया है अभी, तो इसमें कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इज द रिएक्शन टाइम ना. तो Yes, ड्यूरिंग sir. दैट 1 सेकेंड, ड्राइवर विल नॉट अप्लाई द ब्रेक. उस 1 सेकेंड में तो ब्रेक नहीं लगाया उसने. तो इसका मतलब है कि उस 1 सेकेंड में, देखने के 1 सेकेंड के बाद भी ये जो कार है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी या नहीं चलेगी? यस सर. डिस्टेंस कवर्ड, तारिक तुझे नहीं समझ में आया, कवर्ड इन 1 सेकेंड विच इज व्हाट, विच इज रिएक्शन टाइम. भाई जब तक उसने ब्रेक नहीं लगाया तब तक तो वेलोसिटी यही रहेगी ना. और उसने कितना टाइम तक ब्रेक नहीं लगाया? तो उसने 1 सेकेंड तक ब्रेक नहीं लगाया. तो 1 सेकेंड तक तो कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. Yes, sir. Yes. Everyone please respond. Car will continue to move. Car will continue to move with the velocity of 20 meter per second in 1 second, which is the reaction time. So the distance covered in this case would be simply equal to 20 multiplied by 1 is equal to 20 meter. क्योंकि अभी तक कोई retardation नहीं है. After the brakes are applied, after the brakes are applied, when the brakes are already applied now, and that will be applied after 1 second of seeing the man, right? तो 1 सेकंड के बाद जब ब्रेक लगा तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी आई वांट इट टू बिकम 0. रिटार्डेशन is -2 meter per second square. We have to calculate the distance. Tell me, did you understand this or not? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. तो आप कौन सा इक्वेशन लगाएं बेटा? Who will tell me which equation should I apply? I want final velocity to be 0. Initial velocity is 20. Acceleration is -2. I have to find out the distance. Who will tell me which equation should I apply? V square. Very good. V square square वाला बहुत बढ़िया जानवी. तो V स्क्वायर में V स्क्वायर मतलब 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इज 0. U स्क्वायर इज 20, तो 20 स्क्वायर्ड माइनस, या प्लस ही लिख देता हूं, प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन विच इज माइनस मल्टीप्लाइड बाय x2. इज इट अंडरस्टूड? भाई V स्क्वायर इज 0, U स्क्वायर इज 20, एक्सेलरेशन में माइनस साइन है बिकॉज इट इज रिटार्डेशन, so it will be written as 2as. I am using this equation, V square is equal to U square plus of 2ax. Now solve this. So we had 20 squared, right? तो अगर इसको इधर ले आओ तो this will become minus of 20 square is equal to 2 into acceleration which is -2 into x2. ठीक है, तो this -2 and this 2 can become 4. So this can be written as -20 squared is equal to minus of 4 multiplied by x2. Minus and minus goes, x2 will become equal to 20 square is 400 divided by 4 is equal to 100 meter. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So please So- for the previous slide.
ओके, आई एम कमिंग टू दैट स्लाइड। तो इसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 100, और यहाँ ऑलरेडी ही हैज कवर्ड 20, तो 100 प्लस 20 विल टोटल डिस्टेंस दैट ही हैज कवर्ड इज 120। मतलब the driver that has covered the total distance is 120 meter before coming to rest, and man is at a distance of 60 meter. So will the car hit the man or not? Yes, sir. Of course it will hit, because before coming to rest, car is already covering a total distance of 120 meter. रेस्ट में आने से पहले कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 120 मीटर का। तो ऑफ कोर्स कार विल हिट द मैन। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Should I go to the next slide, beta? Yes, Sir, sir. please wait. Okay, I'm waiting. Please note it down and let inform me. Done. Okay, going to the next slide. Please note it down. तो देखो इसमें जो हमने एक टर्म सीखा है ना, द टर्म दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वो टर्म है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है कितनी देर में तुमने रिएक्ट किया, है ना। द टाइम इन विच यू रिएक्टेड टू अ सिचुएशन इज कॉल्ड एज रिएक्शन टाइम। जितना जल्दी रिएक्ट करोगे ना, आपको कहा जाएगा कि तुम उतने क्विक हो, उतने फास्ट हो, तुम उतने चालाक हो, तुम उतने क्लेवर हो। और जितना आपको टाइम कम लगे, मतलब जितना टाइम जल्दी आप रिएक्ट करोगे, मतलब रिएक्शन टाइम, मैं रियल लाइफ का ये बता रहा हूं कि रिएक्शन टाइम जितना कम होगा आपकी चालाकी, ठीक है। ओके, आई एम शोइंग यू द प्रीवियस स्लाइड तारिक। जितना रिएक्शन टाइम कम होगा आप उतने ज्यादा क्लेवर माने जाओगे, क्योंकि आपने उतना जल्दी सिचुएशन को हैंडल किया, आपने उतना जल्दी रिएक्ट करा। और जितना रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा आपका, इसका मतलब है आप उतने थोड़ा कम अकल वाले हो, क्योंकि आपको किसी चीज पे रिएक्ट करने में ज्यादा समय लग गया। समझ में आई बात? अब जैसे मान लो कि कहीं पर देयर इज फायर ब्रेक आउट सम एट सम प्लेस, तो आप जब फायर देखोगे तो आपका दिमाग क्या काम करना चाहिए? आपको आग देखते ही दिमाग काम करना चाहिए कि मुझे पानी लाना है और आग बुझाना है। बट आपको अगर, है ना, जितनी जल्दी आपको ये दिमाग में आ जाएगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। रिएक्शन टाइम जितना कम होगा हम कहेंगे उतना ज्यादा अच्छा बंदा था भाई, उतना क्लेवर था वो। लेकिन अगर मान लो आग देखा, उसके बाद आधा घंटा लग गया मुझे ये सोचने में कि अब करना क्या है, रिएक्ट करने में आधा घंटा लग गया, हाफ एन आवर, मतलब ये सोचने में मुझे हाफ एन आवर लग गया कि मुझे बुझाना है, क्या करना है, तो मैं उतना बेवकूफ हूं ना। क्योंकि भाई तो इस केस में तो जहां आग लगी है वो तो सब कुछ जल चुका होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। और याद रखो रिएक्शन टाइम, यस, कोई कुछ कह रहा है? रिएक्शन टाइम, अच्छा, इन द केस ऑफ मोशन, if they provide you the reaction time, means during that time there will be nothing new taking place. Means जैसे अगर वो reaction time of the driver is 1 second or 2 second, means during that reaction time driver will not be applying any brake. Driver will apply brakes or he will try to stop the car after that particular time, which is the reaction time, है ना। during that reaction time he will do nothing। ठीक है, अब आगे आते हैं। Okay, moving on. What are you saying, Mona? What should I do? I have to show the slide. Which one? First one or second one? Second one. ओहो, पहले नहीं बोलती हैं आप। Be quick. I have to solve one more question Sir. related to this equation of motion. Then we'll proceed. Yes, बोलिए। सर अगर ये जो डिस्टेंस है अगर ये 40 मीटर से भी ऊपर आता तब भी तो हिट कर जाती? नहीं, 40 मीटर से ऊपर आता तो ये हिट, हाँ, अगर ये वाला आई मीन यू आर सेइंग फॉर द सेकंड पार्ट, कि अगर ये सेकंड पार्ट 40 आता, ये कहना चाह रहे हो?
और पहला पार्ट ऑलरेडी 20 है, तो 40 + 20 वुड हैव बिकम 160, तो हिट कर ही जाता। मतलब इफ यू डोंट वांट द कार टू हिट द मैन, तो योर टोटल डिस्टेंस शुड बी लेस देन 60। ओके सर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस इट शुड बी टोटल डिस्टेंस। तारिक, आफ्टर सारी कहानी यू आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन। तारिक, क्या एक्सप्लेन करूं? पूरा क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूं? आंसर। आंसर? अच्छा, आंसर में मैंने ये बोला कि देखो, कार ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना है? पहले वो 20 मीटर कवर कर चुका है, ठीक है, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक उसने ब्रेक नहीं अप्लाई किया। और बाद में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 100। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ जब तक वो रेस्ट में आया ना? यहाँ पर आके उसका वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ पर रेस्ट में आया, मतलब तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया बिफोर कमिंग टू रेस्ट? 120 मीटर। बंदा कितनी दूरी पे खड़ा था? एट व्हाट डिस्टेंस दिस मैन वाज स्टैंडिंग? ये कार से कितने डिस्टेंस पे? 60 मीटर पे था। तो अनडाउटेडली आपको नहीं लगता क्या कि ये 60 मीटर पे है और ये रेस्ट में आएगा तो इसको 120 मीटर कवर कर रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो मतलब ये बंदे को तो मारता हुआ चला जाएगा ना। यस। आपने देखा होगा बिहार में ट्रेनों के सामने बहुत ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो एक्चुअली में मसला क्या है? ट्रेन में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगने में टाइम लगता है। एक तो रेस्ट, ट्रेन को रुकने में टाइम लगेगा, और ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर अगर देख रहा है किसी चीज को, अब ब्रेक लगाएगा तो उसको भी कुछ तो टाइम लगेगा ना देखने और ब्रेक लगाने में। तो इसलिए अगर आप ट्रेन के बहुत करीब जाके खड़े हो गए हो ना, तो ट्रेन ड्राइवर अगर ब्रेक भी लगा दे तो भी ट्रेन के रुकते रुकते वो बंदा मार के निकल लेगा। समझ रहे हैं आप? हाँ, ये कार इस मैन को हिट नहीं करता? जब टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल किया है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले जो टोटल डिस्टेंस कार ने कवर किया है, अगर वो 60 मीटर से कम होगा तो कार विल नॉट हिट द मैन। अगर वो ज्यादा होगा तो कार विल हिट मैन, ऑफ कोर्स। समझ आई बात तारिक? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, आई एम कमिंग टू वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, एक और इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन समझ लो। एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल starting from rest accelerates at a rate of 4 meter per second square excuse me, at a rate of 4 meter per second square for some time, ठीक है, and then retards at a rate of 2 meter per second square for remaining time, and finally stops. ठीक है? If particle was in motion for total time of 20 seconds, then find his maximum velocity during motion. क्वेश्चन नोट करो, आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, बट उससे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लो। आप क्वेश्चन नोट कर लो, मैं पूरी बात समझाऊंगा और फिर सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन द क्वेश्चन।
Sir, find his. Find his maximum velocity. Done, sir. Okay. Okay, now let us talk about this. देखो सबने नोट कर लिया, मैं इरेज कर दूं सर इसको? Just 20 seconds. Okay, I'm waiting. Please hurry up. Sir, done. Okay, beta. Okay, I'm erasing this question. Now I'll explain you this first and then I'll solve. तो मेरी बात सुनना सबसे पहले. A particle starting from rest. अच्छा तारिक, अगर particle starts from rest, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है Yes, कि sir. particle starting from rest, initial velocity कितनी होगी? What will Zero. be the initial velocity? Of course zero. बहुत बढ़िया. Initial velocity zero. अब ध्यान से सुनो क्या कहता है. आपसे कहता है कि particle starting from rest accelerates with an acceleration of 4 meter per second square for some time. कुछ टाइम तक. कितने टाइम तक वो नहीं बोला, बट बोला फॉर सम टाइम. क्लियर? मान लो ये टाइम कुछ t है, मान लो दिस टाइम इज t. अब इसके बाद कहता है अच्छा जब वो एक्सेलरेट करेगा, व्हेन द पार्टिकल विल एक्सेलरेट, तो व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? अगर पार्टिकल एक्सेलरेट इंक्रीज करेगा, पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी. कब तक बढ़ेगी? जब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है. मान लो बढ़ते 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 वो v हो गई. आई होप सबको समझ आ गया होगा. देखो इन फर्स्ट सिचुएशन पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, तो इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड इट विल रीच टू सम मैक्सिमम वैल्यू. यही हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों है? बिकॉज अब आपसे कहता है कि आफ्टर दिस पार्टिकल नाउ स्टार्टेड डिसेलरेटिंग, मतलब रिटार्डेशन होने लगा. And particle started retarding with an value of 2 meter per second square. Is it clear? Particle पहले accelerate हुआ है तो velocity increase हुई है. फिर particle retard हो रहा है तो velocity decrease होगी. और कब तक हुई? जब तक final velocity zero नहीं हो गई. Is it clear or not? First respond to it. Yes, sir. पहले Yes, sir. particle की velocity बढ़ी क्योंकि accelerate हुआ. Yes, sir. फिर particle की velocity decrease हुई because it is retarding. And कब तक retard हो रहा है? Till its final velocity became equal to zero. Till its final velocity becomes zero. तब तक retard हो रहा है. और कितने टाइम तक retard हुआ ये भी मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है कि टोटल टाइम क्वेश्चन में मेंशन है कि it is 20 seconds. अगर वो 20 seconds तक it was in motion, मतलब if the particle was in motion for 20 seconds, मतलब P से यहां तक जाने में, let me call this as R, तो टोटल टाइम टेकन फ्रॉम P टू R इज 20 सेकेंड्स. और मैंने ये अज्यूम किया कि P से Q में टाइम लगा 20, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर जो टाइम लगेगा वो 20 माइनस टी होगा? टेल मी यस और नो. नहीं आया, मैं फिर से Yes, रिपीट sir. कर रहा हूं. Yes, sir. द क्वेश्चन इज सेइंग कि टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज 20 seconds and I have assumed that the particle accelerated for t seconds. So the remaining time for which particle is decelerating is 20 minus t seconds or not? Mona, Please explain it again. I'm not getting it. beta, please ask yourself. है ना? Please don't wait me to ask you whether you have understood or not. If you don't get anything, you have all the permission and you have all the rights to ask me at the same time. Please don't wait for me to ask whether you have understood this or not. Please make it clear that you have all the permissions and you have all the rights to ask me anything at any point whenever you don't understand anything, right? अब मौना फिर से सुनो. Listen to me again. In question it is given that particle was in motion for 20 minutes. I am saying in going from P to R, particle took a total time of 20 seconds, right? But in this 20 second, particle has accelerated as well as it has retarded. So let's say if I say कि particle accelerated for 4 seconds, मान लो, let's say. So what would be the time for which particle is retarding? That will be 20 minus 4 or not, Mauna? Yes, sir. So I'm saying कि particle is accelerating for a total time of t.
So what will be the time in which particle retards? So that would be 20 minus t or not? Yes, sir. Okay, because here is the two parts of the motion. Initially particle was accelerating and then particle started decelerating, मतलब retarding. ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि what is maximum velocity. अब बोलो पहले तो ये क्वेश्चन is it clear to all or not? First tell me that. Yes, sir. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? देखो इसको मैक्सिमम क्यों बोला? Why are we calling this as maximum? The reason being from P to Q velocity is increasing and after Q to R velocity started decreasing. तो यहाँ पर जो velocity होगी that will be maximum because after this velocity has started decreasing. तो यहीं पर velocity maximum होगी, that is at Q, क्योंकि इसके बाद तो velocity कम होने लगी है, तो यहाँ पर maximum है. अब देखो कैसे solve करेंगे. Again we will consider two parts, P to Q and then from Q to R, है ना. ये दो पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसका, Q to R and P to Q. अब देखो P to Q में चलते हैं. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या है मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम मैंने इसमें मान लिया t, ऑल्दो वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ t, बट मैंने माना है. मुझे एक बात बताओ, इफ आई अप्लाई दिस इक्वेशन v is equal to u plus at, तो ये v is my final velocity, u is 0, u की वैल्यू is 0, acceleration is 4 multiplied by time I have assumed it as t. So can I write t is equal to v by 4? Tell me yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Have you understood this part? Yes, sir. P से Q सबको क्लियर है? ठीक है, अगर आपको P से Q तक क्लियर है तो आप चलिए Q से R में आते हैं. Who will tell me what is initial velocity in this? Q to R में what is initial velocity? V max. यार सब बोलते नहीं है, वो अजीब लगता है मेरे को. अरे Vmax. इनिशियल वेलोसिटी यही हो गया ना, यही V max. इसको मैंने, या तो आप चाहो तो मैं इसको V max कर देता हूँ. V max मुझे निकालना है, हर जगह मैक्स लगा देता हूँ. Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अब Q to R जाएंगे तो दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज पार्टिकल हैज टू स्टॉप. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें टाइम आपको दिख रहा है 20 माइनस टी. तो फिर से अप्लाई करो v is equal to u plus at वाली इक्वेशन. फाइनल वेलोसिटी शुड बिकम 0, इनिशियल वेलोसिटी इज v max, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 और टाइम इज 20 माइनस टी. इज इट क्लियर? Yes, sir. एवरीवन प्लीज स्पीक. Yes, ठीक sir. है, ये ऐसा हो गया ना बेटा. इसको सॉल्व करो तो -v max बेटे, दिस विल बी इक्वल टू 2 से इसको मल्टीप्लाई करो -40 प्लस ऑफ 2t. साथ में ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा. या आप ऐसा चाहते हो, अगर आप चाहो तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, तो मैं ऐसे इसको लिख दूं भाई. एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ. माइनस ऑफ v max is equal to -2 multiplied by 20 minus t. So this minus and this minus will cancel out. यहाँ तक is it clear? Please tell me. Yes, और sir. अगर क्लियर है तो प्लीज नोट इट डाउन. Yes, sir. Yes, sir. Janvi, what do you say? Is it clear till here? Okay, please hurry up. Note it down. Done, sir. Very good. तो अब देखो बेटा V max. अब आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज वेयर आई विल बी राइटिंग द नेक्स्ट स्टेप्स. यहाँ पर V max की वैल्यू कितनी है? 2. ओके, तो V max that I am getting is equal to 2 into 20 minus of t. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V max will be equal to 2 multiplied by 20 is 40 minus of 2t. This is my second equation. Yes, sir. From first equation, put t in second equation. ठीक है, मतलब you have already calculated the value of t in first equation. See, you have already calculated the value of t in this equation. Put that t in the second equation. So it will become 40 minus of 2 into v max divided by 4. Agreed? यहाँ तक क्लियर है सबको? Sir. तो सर ये क्या हो जाएगा? v max is equal to 40 minus of v max divided by 2 बन जाएगा ये, because 2 and 4 will cancel out, तो it will become 2. इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा v max plus of v max divided by 2
is equal to 40. सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट Yes, स्टेप sir. में इधर दिखा देता हूँ, देख लो। इसको ऐड करोगे ना बेटा तो ये हो जाएगा 3v max डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 40। तो v max की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 80 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ योर फाइनल वेलोसिटी, मींस मैक्सिमम वेलोसिटी। This will be your maximum value of velocity. See whether you have understood every step of this or not. यस सर। Yes, sir. Note कर लीजिए फिर बताइए। Mouna, did you understand every step? Yes, sir, I understood, sir. Very good, beta. Vibhuti, what about you? Yes, sir. Understood. Ibrahim, Yes, sir. Understood. ठीक है, नोट करके मुझे बताओ तो मैं आगे चलता हूँ फिर। Done, sir. गुड। तो अब एक काम करो, आज इक्वेशन ड्राइव करने में इट विल टेक टाइम, तो एक काम करो आज यहीं तक रहने दो, ठीक है? और आपको जो assignment that you have got yesterday and today also you will get assignment based on these equations of motion. Try solving the questions of your assignment. आपको जो assignment मिला है उसके questions को आप try करिए, उसको solve करने की कोशिश करिए, ठीक है? और उसके बाद in tomorrow's class we will first discuss your doubt and then we will come to the last equation which is called as nth equation. That we'll do tomorrow. ठीक है सर? आज इतना ही। Okay, sir. Thank you, sir. ओके सर, Okay. थैंक यू सर। You welcome all. Please उन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना, तो Thank कल you. बात करेंगे आगे। Okay, you welcome all. Bye bye.